Hello everyone. We're going to start the Hindu Marriage Act. So, in the last class, we have already discussed till section 19 of the Hindu Marriage Act, and today we are going to have a small revision. Okay, so in the last class, we have understood till section 18 of the Hindu Marriage Act, and in today's class, we are going to have a small revision from section 19 to 20, 21, and 22 of the Hindu Marriage Act, and then we'll be proceeding further. Okay. So, about coming the point of the revision of the Hindu Marriage Act, we have already understood that what are the courts in which the petitions can be presented, what are the terms and conditions of the petition, how many kinds of the petitions are there, जैसे कि it might be for the judicial separation, it might be for the divorce, or it might be for any kind of the restitution of the conjugal rights. Okay, so there are the various kinds of the nature of the petition that those are also presented over here. So all these things we have already discussed in the last class. Okay. So in today's class, we are going to have a small recap about the thing we have discussed before this class. Okay. So let's come to the point of section 19. सेक्शन 19 पे हमको ये बोला जाता है कि कोर्ट टू हुईज द पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो आपको ये बोला जाता है कि कौन सा कोर्ट पे आपका जो लीगल पिटिशन है वो फाइल किया जा सकता है। सो व्हाट आर द कोर्ट्स इन व्हिच द केस और द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। ओके, सो मतलब कोर्ट का जो आपका जुरिस्डिक्शन होता है ना, वो क्या होना चाहिए, कौन सा जुरिस्डिक्शन पे केस फाइल किया जा सकता है, दैट इज व्हाट दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट। ओके, so when we are coming to the point of the jurisdiction, the first thing to which comes to our mind that the jurisdiction is about like the capacity of the court. Okay, that means for example if I am staying at Odisha, then the court of my jurisdiction will govern my activities. Okay, for example someone is living at Bihar, Patna, so the under what court, which court this person will be governed। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो पटना का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तो आप जिस इलाके में रहते हो, आप जहाँ पे भी रह रहे हो, आपको घर जहाँ पे है, आपका मतलब रेसिडेंस जहाँ पे है, उसका जो भी रिलेटेड कोर्ट है, द कोर्ट which is related to your location, okay, the court which is related to your area, to the locality where you are residing, then that is called the jurisdiction of that particular court। okay, ये बात ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। गया ये पहला बात। दूसरा बात, हम जब jurisdiction की बात करें ना, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द jurisdiction ऑफ द कोर्ट, तभी हम लोगों को ये बात का भी पता है कि हर कोर्ट का jurisdiction अलग अलग होता है। जैसे कि देयर आर lakhs and crores of the district court, they are just existing in all over the India, lakhs of the district courts। हर एक स्टेट के, हमारा अगर 29 स्टेट है, मान लीजिए 29 स्टेट पे हर एक स्टेट का, किसी स्टेट का 15 डिस्ट्रिक्ट है, किसी का 30 डिस्ट्रिक्ट है, किसी का 40 डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे मिला कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो अगर आपका 29 स्टेट है तो यू हैव मिनिमम अराउंड 1000 से ज्यादा नंबर का भी डिस्ट्रिक्ट आपका है। ओके, और हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक्टिविटी को गवर्न कर रहा है, देयर आर thousands of the district court which are existing in all over the India। okay, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपना अलग सा कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, अपना अलग सा रूल्स होता है, अपना अलग सा रेगुलेशन होता है, अपना सेल्फ गवर्नेंस नाम का भी कुछ चीज यहाँ पर होता है। गॉट इट। सो
यहाँ पे जो बोला जाता है कि एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुई द ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे आपका जो आप अगर किसी भी तरह का डिवोर्स का केस फाइल करना चाहते हो, जुडिशियल सेपरेशन, कोई भी क्रुएल्टी के ग्राउंड पे आप डिवोर्स भी करना चाहते हो, कोई कंप्लेन करना चाहते हो, तो कौन होगा? वो पुलिस होगा। पहला ही बोला जाता है कि आपका के पास आते हो हर टाइम। बात भी पता है अगर आपको डिवोर्स का है तभी आपको पुलिस के पास नहीं, आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका अपना जुरिस्डिक्शन पे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है या कर रही है उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपको जाना होगा टू फाइल ए कंप्लेन अगेंस्ट योर पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये बात कि आपका जुरिस्डिक्शन क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ, मान लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पति होके अपने पत्नी के विरुद्ध किसी भी तरह का कंप्लेन लाना चाहती हूँ, या फिर अगर आप मेरी पत्नी है, आपको अपने पति के अगेंस्ट किसी भी तरह का कंप्लेन लाना है, आपको पति को डिवोर्स देना है, आपको उसी से अलग रहना है, तो आप उसी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल करना चाहते हैं, देन वेयर वी आर गोइंग टू डू दैट? यू आर गोइंग टू डू इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली, जो कि आपका लोकल जुरिस्डिक्शन पे होगा, जो कि आपका जुरिस्डिक्शन को गवर्न कर रहा होगा। So what are those particular jurisdiction? We will understand this in a very, very clear manner. Okay. An emergency call. There was a promise. I had to stop over there. Okay. So petition can be filed. Okay. So filed. Okay. Various kinds of the courts are there. जैसे कि first we have understood that the petitioner is living. Okay. Or where the petitioner and the respondent both have resided together. That means if there is a couple are taking divorce, then before the divorce, before the solemnization of the marriage, what is the last place they have resided together? एक साथ रहे थे, the last location they have stayed together. The first point. The second था the petitioner, मतलब अगर जो भी पहले भी पिटिशन फाइल कर रहा है, जो भी पहले कंप्लेन दे रहा है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है, उसका घर रहता है, पहला चीज। ओके, दूसरा चीज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट। यहाँ पे आपका जो दूसरा पार्टी है, रेस्पोंडेंट है, वो अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए द हस्बैंड इज लिविंग एट दिल्ली एंड वाइफ इज लिविंग एट मुंबई एंड वाइफ हियर इज अनेबल टू कम्युनिकेट टू दिल्ली ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो यहाँ पे केस जो है वाइफ का जो लोकेशन है मुंबई जो है वहां तक ट्रांसफर भी हो सकता है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वैलिड सर्कमस्टेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट रीजंस। ओके, तो ये चीज गया। तो लोकेशन ऑफ द पिटिशनर, जहाँ पे पिटिशनर रहता है, जहाँ पे रिस्पोंडेंट रहता है, जहाँ पे उन दोनों का सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हुआ है, जहाँ पे शादी टूटने से पहले उन दोनों साथ में रहा करते थे, पहला चीज। और दूसरा, इन केस द वाइफ इज पिटिशनर वेयर शी इज रिजाइडिंग एज द डेट ऑफ द पिटिशन, प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। अगर यहाँ पे आपका जो वाइफ है, बीबी जो है, वो अगर पिटिशनर है, तो जिस दिन आपका ये पिटिशन दिया गया है, लिखा गया है, तो पिटिशन के दिन at the place of the residence of the wife, wife कहाँ पे थी, where the wife was present at the time of the petition. okay, तो उसका लोकेशन भी मैटर करता है and according to that also the case can be filed. okay, and the last but the most important point, अगर पति या पत्नी किसी भी स्पाउस को फ्रॉम लास्ट 7 years, 7 साल से उसका कोई आता पता नहीं है, उसका कितना भी ढूंढ लो, उसी को कहाँ पे भी ढूंढ लो, उसी का कोई आता पता, उसका कोई खबर कुछ भी नहीं मिल रहा है, दैट पर्सन हैज बीन डिसअपियर्ड,
तो वहां पे एट द लास्ट को जहां पे देखा गया था उस लोकेशन पे भी केस फाइल हो सकता है। ओके, तो these are the situations जहां पे these are the courts of the local jurisdiction of the petitioner and respondent, जहां पे आप अपना केस फाइल कर सकते हो डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। देखिए ना, हमारे लॉ पे हमको कितना कंफर्ट जोन देके रखा है यार। यहाँ पे कभी कभी मतलब लगता है कि यार हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज वेरी कंपेटेबल अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जैसे कि देखो, हर कोई दूसरा जुरिस्डिक्शन पे जाके हमेशा केस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो इसीलिए ये लॉ बनाया गया है कि अगर आप कौन सा भी लोकेशन पे हो, आप दिल्ली पे हो, बॉम्बे पे हो, कोलकाता पे हो, आप जहां पे भी हो, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप उसका जो लोकल जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है वहां पे आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, राइट। तो बाकी आगे का जो केस का प्रोसीडिंग होगा वो उसी कोर्ट पे होगा या दूसरा कोई कोर्ट पे होगा, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? सो आफ्टर दैट the next section that comes about section 21, and it speaks about the contents and the verification of the petitions. Okay, so what does it speak? Let's understand this. Every petition presented under this act shall state as distinctly as the nature of the case permits the facts on which the claim to relief is founded, and except in a petition under section 11 shall also state that there is no collusion between the petitioner and other party to the marriage. Okay, and the clause 2 speaks, the statement in every petition under this act shall be verified by the petitioner or some other competent person in the manner required by law for the verification of the plaints, and may at the time of hearing be referred as to evidence. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? पहला ये बोला जाता है कि अंडर सेक्शन 11, अगर हम सेक्शन 11 के बारे में बात करते हैं जहां पे हम लोगों ने अबाउट द वॉइड मैरिज बात की थी। ओके, we have understood that under section 11 the things we are doing at the time of the marriage, if the activity is void in nature, if the nature of the marriage is void or invalid before or after of the marriage, then the marriage is considered as the void marriage. So जहां पे शादी को void माना जाता है, जहां पे शादी को शादी ही नहीं माना जाता है, when the marriage is considered as void and invalid, then वहां पे क्या हो रहा है? Marriage is considered as void and invalid at a particular place, right? So in that case, there is no breach of the terms and conditions of the marriage. वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे कि मैरिज का जो कंटेंट्स था, मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसका कुछ गड़बड़ हो गया, उसी का टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने नहीं माना, राइट। सो यू कैन नॉट कंप्लेन upon the upon your problems regarding that particular marriage, because you yourself has taken a step and आपने खुद बोला कि this marriage is void, ये शादी को हम as a marriage consider ही नहीं कर रहे। If we are not considering something as marriage, then how the problem can be arisen upon something which is just not a marriage? Got it? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने ये पढ़ा था कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटिशंस। आपका डिवोर्स केस हो जाए, जुडिशियल सेपरेशन हो जाए, किसी भी तरह का केस देख लीजिए, उसके लिए ना आप जो कंटेंट देते हो, आप जो भी आपका कंप्लेन बोलते हो कि चलो देखो मेरे साथ ये दिक्कत हो रहा है, या फिर आई एम फेसिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो ऑल दिस प्रोसेस, ऑल दिस थिंग्स, all these contents of your petition, that must be true and valid, that must be authentic in nature. Okay, and there should not be any collusion between the petitioner and the other party to the marriage. Okay, मान लीजिए there is a daughter who has left his husband's home
वो अपना घर वापस आ गई। वो बोला कि नहीं, मेरे को अपना ससुराल अब नहीं जाना है, मेरे को अपने माँ बाप के साथ अभी कुछ दिन रहना है। तो दैट पर्सन स्टार्टेड लिविंग विथ हर पेरेंट्स। ओके। फिर व्हाट हैपेंस दैट द पर्सन, राइट, वो जिस ग्राउंड पे ले रहा है डिवोर्स अपने पति के साथ, लाइक दैट गर्ल इज कंप्लेनिंग कि अपना पति मेरे साथ क्रुएल्टी कर रहा है, मेरे को मारपीट कर रहा है, एंड अपन दैट ग्राउंड आई वांट डाइवोर्स। उनका ये ग्राउंड है, राइट। तो पति का क्या ग्राउंड है? अगर मैंने उनके साथ मारपीट किया है, अगर मैंने उनको हरास किया है, तो उसी का प्रूफ दे दिया जाए, राइट। लड़की का जो पिता है, जब उनका बयान लिया जाता है, तो वो बोलते हैं कि हमको तो बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं, वी नेवर नो दिस बिफोर, हमको ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट। सो यहाँ पे जो हर किसी का ओपिनियन है ना, वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है। आपका जो मटेरियल फैक्ट है, आपका जो भी पूरा लॉजिक है, वो दैट शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। उसी को आप अंधेरे में नहीं रख सकते। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए देर इज ए पर्सन हु इज वेरी सोशियली authorized or anything. Okay. If that person is entering into a contract, if that person is signing any kind of the contract of some higher value, then वहां पे क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट का जो कंटेंट था, जो कंटेंट होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, दैट इज वेरीफाइड अगेन एंड अगेन। उसी को बार बार वेरीफाई किया जाता है ना, राइट। देन यहाँ पे पिटिशन का जो कंटेंट है, जब कोर्ट में किसी के भी अगेंस्ट किसी भी तरह का पिटिशन फाइल होता है, कंप्लेंट जाता है, देन ये चीज भी देखना पड़ता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट का नेचर क्या है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इज द कंटेंट एज ए कैन बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड कंसेंट। क्या ये जो कंटेंट है, उस कंटेंट का जितना सारा डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, जितना सारा डाटा दिया गया है, क्या हम उसको एक वैलिड डाटा के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं? Can this content is consent? Yes. The content there should not you and your parties. Okay. आपका जो स्टेटमेंट है, आप जो कुछ भी बोल रहे हो कोर्ट को, आपका जो दूसरा पार्टीज है, आपका रेस्पोंडेंट हो गया, आपका खुद का पिटिशनर का विटनेस हो गए, उनका ओपिनियन और आपका ओपिनियन पे कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। दैट शुड बी इक्वल इक्वल। आप अगर किसी चीज बोल रहे हो, देन द अदर पार्टी शुड बी लायबल टू टेल दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे सारा चीज क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी ए ट्रांसपेरेंसी बिटवीन एवरीथिंग। ओके, क्लियर? ये बात समझ में आ गया? तो कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटिशन के अंदर सिंपली ये चीज बोला जाता है कि the statements contained in every petition under this act shall be verified by the petitioner and some other competent person in the manner required by the law. Okay, so this thing which speaks about the content and verification of the petition, this exactly all over this section speaks that अगर किसी भी तरह का विटनेस कोई दे रहा है, अगर किसी भी तरह का केस फाइल हो रहा है, देन इमीडिएटली वहां पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। देयर शुड बी द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। उसी केस का क्या किया जाएगा? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि वो केस किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। इज द पर्सन against whom the complaint has been raised, they're actually liable for that particular crime? तो ये चीज को भी समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्लियर? देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अंडर सेक्शन 21, इट स्पीक्स अबाउट
यहाँ पे आपका मैरिज का जो भी जितना सारा प्रोसीडिंग होगा, लाइक डिवोर्स को हो गया, जुडिशियल सेपरेशन का हो गया, दैट विल बी कंटिन्यू एज यूजुअल। लाइक आपका हिंदू मैरिज एक्ट का जितना सारा भी सेक्शन है उसी के अंदर वो भी कंटिन्यूटी उसी का रहेगा। ओके, बट अगर हम बात करते हैं अबाउट द अदर प्रोविजंस, जैसे कि अगर आप अपने पति से मेंटल हैरेसमेंट के ग्राउंड पे डिवोर्स ले रहे हो, आप अपने पति से क्रुएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स ले रहे हो, ओके, सो दीज आर द सिचुएशंस। अगर हम क्रुएल्टी की बात करें, मेंटल हैरेसमेंट की बात करें, तो ये सब किसके अंदर आता है? आपका सीआरपीसी के अंदर आता है, आपका सीपीसी के अंदर आता है, राइट? एंड एंड वी नो दैट, आई नो दैट दिस इज अबाउट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो मैरिज का जो बाकी का प्रोसीजर है ना, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, तो मैरिज इज नॉट एन सिविल एक्ट, but it is not been governed under the, yes, what I was telling you, marriage is governed under the Hindu Marriage Act and the Code of Civil Procedure 1908। दोनों एक्ट किसको गवर्न करते हैं, क्या क्या गवर्न करते हैं? द हिंदू मैरिज एक्ट एंड द सेकेंड वन इज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ओके, क्लियर? Then comes to section 21A, which speaks about the power to transfer petitions in certain cases. Okay, what does it mean? The power to transfer the petition। अगर मेरा वाला कोर्ट पे ना किसी भी तरह का मामला आया है, तो मेरा मामला तुम्हारा कोर्ट को भी जा सकता है। देर इज द प्रोबेबिलिटी, देर इज द possibility to transfer the petition from where to where, from one court to the another court। okay, let's understand it how। अब मुझे पूछेंगे ये कैसे होता है मैम, लाइक आपने बोला कि कोर्ट से कोर्ट केस पे ट्रांसफर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए द हस्बैंड इज staying at Delhi and the husband has filed a case under the Hindu Marriage Act against the wife। दूसरा सिचुएशन मान लीजिए द वाइफ इज स्टेइंग एट मुंबई, तो the wife has also filed a petition at the local jurisdiction of the Mumbai। तो यहाँ पे क्या होता है? The husband has filed the petition at the jurisdiction of the Delhi, the wife has filed the petition at the jurisdiction of Mumbai। ये दोनों अलग अलग लोकेशन पे अपना jurisdiction फिक्स किया हुआ है, ओके, है ना? तो यहाँ पे अगर हम पिटिशन को ट्रांसफर करने का बात करें, पिटिशन का ट्रांसफर कौन सी केस पे किया जाता है? जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है और केसेस सिमिलर होता है, वहां पे केसेस ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टोल्ड यू कि देखो, जैसे कि हस्बैंड इज स्टेइंग एट दिल्ली, सो ही फाइल्ड ए केस एट दिल्ली। वाइफ इज स्टेइंग एट मुंबई, सो वाइफ ऑल्सो फाइल्ड ए केस एट मुंबई। तो यहाँ पे अगर हम हस्बैंड और वाइफ को सेपरेट सेपरेट अलग अलग बातें करें, राइट, तो हस्बैंड, मान लीजिए हस्बैंड हैज फाइल्ड द पिटिशन बिफोर द वाइफ। पहले हस्बैंड ने ही वाइफ के अगेंस्ट जुडिशियल सेपरेशन का पिटिशन डाला था कि मेरे को मेंटली क्रुएल्टी हो रहा है मेरे साथ, मैं ये सब और टॉलरेट नहीं कर सकता, तो आई वांट डाइवोर्स फ्रॉम माय वाइफ। ओके, तो वाइफ ने क्या किया, बाद में अपना डिवोर्स पिटिशन फाइल किया अगेंस्ट द हस्बैंड एट हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो सिचुएशन आपका हुआ, ओके, कि आप दिल्ली पे केस फाइल किए हो, आपका पत्नी मुंबई पे केस फाइल किया है, बट आपका प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जिस लोकेशन पे आप अगर पहले से कोई भी केस लगाए हो, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टेइंग एट द दिल्ली जुरिस्डिक्शन, तो दिल्ली जुरिस्डिक्शन का ही जो कोर्ट है, अगर वहां पे आप अपना केस दे रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू बी कन्वीनियंट फॉर यू। ओके, तो एंड इस सिचुएशन पे जहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही कोर्ट में अपना अपना अलग अलग डिवोर्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन किसी का भी हो, अपना कोई भी कंप्लेन लेके आ रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं ना, उनको साथ में बुला लेते हैं, राइट, एंड उनका जो भी सारा प्रोसीजर होता है वो एक साथ साइमल्टेनियसली उसी को ट्राई करना पड़ता है। ओके, क्लियर?
सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि अगर दोनों पार्टी दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते तो उनका जुरिस्डिक्शन भी अलग ही रहेगा, उनका जुरिस्डिक्शन सेम नहीं रह सकता. ओके, एंड आई वांट टू क्लियर इट आउट कि इवन इफ द जुरिस्डिक्शन इज सेपरेटेड डजंट मैटर. तो पहला पार्टी जो है वो जिस लोकेशन पे केस किया है, उस जिस लोकेशन पे कंप्लेंट फाइल किया है, दूसरा पार्टी को अपना जो केस है उसी लोकेशन पे ही लाना पड़ेगा, एंड दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द कोर्ट. द ट्रांसफर विल हैपन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ओनली. क्लियर? देन कम्स टू द पॉइंट ऑफ सेक्शन 21A, जहां पे हमने पढ़ा power to transfer of the cases, and section 21B about the special provisions under this act. Okay, so this is under section 21B, and 21C speaks about the documentary evidence, which speaks that notwithstanding anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence if it is not duly stamped or registered. तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आपका डिवोर्स का हो गया, जुडिशियल सेपरेशन का हो गया, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आप मान लीजिए दैट इज नॉट बीन ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, दैट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड. बट अगर आप यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं कि मैम अगर डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया गया है, अगर डॉक्यूमेंट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड, सो इज इट ए ग्राउंड जिसके बेसिस पे आपका जो भी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है उसी को डिसमिस किया जा सकता है क्या? द आंसर इज नो. कि अगर आपका मैरिज का रिलेटेड या डिवोर्स का रिलेटेड या आपका जुडिशियल सेपरेशन का रिलेटेड कोई भी सबूत आपके पास हो, दैट माइट बी द प्राइमरी एविडेंस, दैट माइट बी द सेकेंडरी एविडेंस, दैट माइट बी द टर्शियरी एविडेंस, इट डजंट मैटर. इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ द प्रूफ इन योर हैंड, ओके, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है, even if it's not registered, it's not duly stamped, that will not considered as an invalid evidence. क्योंकि हर किसी का सिचुएशन हमेशा नहीं होता कि कोर्ट में जाके रजिस्टर पे साइन करवाना, कोर्ट पे डॉक्यूमेंट का प्रॉपरली स्टाम्पिंग करना, ये हमेशा नहीं हो पाता है. कुछ कुछ एविडेंस क्या होता है ना, इंस्टेंटली आंखों के सामने आता है. कुछ कुछ एविडेंस होता है कि जिसी को छुपा के रखना पड़ता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्लाइंट. तो ये सारे सिचुएशन पे क्या होगा, ये सारे सिचुएशन पे आपका जो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है उसी को प्रोटेक्ट किया जाना ही जरूरी होता है. क्लियर? समझ में आ गया? सो even if the documentary registered is not duly stamped or registered, that will still be considered as the valid documentary evidence. Clear? So from the next class, we are going to study about the section 22 of the Hindu Marriage Act. This is all for today, guys. Winding up the class over here. If you are having any kind of the doubt, just do chat, ask me in the chat box, or we can just discuss in the next class. Okay. Thank you so much. Take care. Bye bye.